Hello everyone. The topic for today's session or video is the software efforts, schedule and cost estimation, which is the topic from Unit 5, Software Maintenance and Software Project Management. First, we will learn what is software effort or effort estimation in software engineering. Effort estimation is the process of predicting the most realistic amount of effort required to develop or maintain software based on incomplete, uncertain and noisy input. तो effort estimation ये है कि predict करना most realistic amount of effort जो required होता है किसी भी software को manage करने में. ये used होता है as input to project plans and help draft project plans or budgets in early stages of the SDLC, which is the software development life cycle. Second is the project estimation. For an effective management, accurate estimation of various measures is a must. With the correct estimation, managers can manage and control the project more efficiently and effectively. Project estimation may involve the following. सबसे पहले है software size estimation. Software size जो होता है वो estimated होता है in terms of KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड, या कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स इन अ सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पर ना जो लाइंस ऑफ कोड रहता है वो डिपेंड करता है अपॉन द कोडिंग प्रैक्टिसेस. सेकेंड है एफर्ट एस्टिमेशन मैनेजर. ये कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड मैन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर. फॉर एफर्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर साइज अपने को नोन होनी चाहिए. थर्ड है टाइम एस्टिमेशन. जैसे ही साइज और एफर्ट एस्टिमेशन निकल जाते हैं उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर एस्टिमेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं. फोर्थ है कॉस्ट एस्टिमेशन. ये अपन बोल सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है इन सब में से, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन मोर एलिमेंट्स देन एनी ऑफ द प्रीवियस वंस. टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट ये रिक्वायर होता है कि अपन इन सारी चीजों को कंसीडर करें. फर्स्ट इज द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, the quality of the software, the hardware, additional software or tools, license, etc. Skilled personnel with task-specific skills, travel involved, communication, training and support. Now, the project scheduling. Project scheduling in a project refers to roadmap of all activities to be done with specified order and within the time slot allotted to each activity. This means ये एक roadmap होता है, मतलब sequence में सारी activities होती हैं with their time slot जो within the given time slot में complete करनी होती है. Project manager जो होता है वो define करता है various tasks और project milestone और फिर arrange करता है keeping the various factors in mind. यहाँ पर सारी एक्टिविटी सीक्वेंस में होती है. तो जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटीज. सेकेंड, आइडेंटिफाई द पॉसिबल डिपेंडेंसीज. थर्ड इज द एस्टिमेट रिसोर्सेज. फोर्थ इज द असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज एंड फिफ्थ इज द क्रिएट एक्टिविटी नेटवर्क एंड बार चार्ट. फॉर शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट ये नेसेसरी होता है कि अपन ब्रेक डाउन करें द प्रोजेक्ट टास्क को स्मॉलर which is the manageable form, find out करें various tasks और उन दोनों सबको correlate करें, estimate करें time frame required for each task, divide करें time को into the work units, assign करें adequate number of work units for each task, calculate करें total time जो कि required होता है from start. Now, the cost estimation. Cost estimation can be defined as the approximate judgment of the cost for project. मतलब कितना approximate cost लग रहा है किसी भी project को डेवलप या डिजाइन करने में. ये मेजर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट. नाउ व्हाट इज एफर्ट? सो एफर्ट इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर वन पर्सन टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कोकोमो मॉडल, जिसका फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जो कि एक प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है. ये बहुत ही ज्यादा यूज्ड होने वाला मॉडल है इन दी वर्ल्ड. कोकोमो मॉडल यूज्ड होता है टू एस्टिमेट द साइज, एफर्ट और ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये मॉडल तीन डिफरेंट मॉडल्स में कैटेगराइज्ड हुआ है, जो कि फर्स्ट है बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल्ड मॉडल. बेसिक मॉडल जो होता है वो अप्लाइड होता है इन दी early in the project's development. Intermediate model used होता है after you may have more details required for a project, and detailed model use होता है when design of the project is complete and you only need to apply this model to further refine your. अब ये जो तीन मॉडल्स होते हैं ये फिर से तीन मोड्स में कैटेगराइज होते हैं, जो कि होता है ऑर्गेनिक, एम्बेडेड और सेमी डिटेल्ड मोड. ऑर्गेनिक मोड यूज्ड होता है फॉर रिलेटिवली स्मॉल सॉफ्टवेयर टीम्स जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती हैं इन अ हाईली फैमिलियर एनवायरनमेंट. एम्बेडेड ऑपरेट होता है इन टाइट कंस्ट्रेंट्स जहां पर प्रोजेक्ट टाइड होता है टू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस. सेमी डिटेल्ड ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है समवेयर इन बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड द एम्बेडेड. थैंक यू.